हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, स्लाइड नज़र आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी, लास्ट टाइम जो है हमने होमोजीनियस जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, सेपरेबल देख लिया था, जिसमें सेपरेट करते हैं ऑल एक्स वेरिएबल्स टूवर्ड्स डी एक्स एंड ऑल वाई वेरिएबल्स टूवर्ड्स डी वाई। ओके, तो नाउ start from again homogeneous differential equation, repetition of homogeneous. First, before the study of homogeneous differential equation, we must know the homogeneous function. A function f of x comma y is called homogeneous of degree n if this condition is possible. If we replace x variable with dx and y with dy, and the resultant equals to t power n, again the function remains same, but we taking t variable common outside the function with some power, here with some power n, that is where t is a non-zero real number. Okay, we have some examples and we have to check either these examples are homogeneous or function or not. So first we take f of x comma y equals to under root xy. We replace this x and y with tx and ty, and simplified we get t power 1, and remains function remains same. Okay, at the end under root xy. This means that this condition is possible. So we can say that this function is homogeneous function of degree what? Of degree 1, because t power 1. Similarly, you have to check last time this function is was was homogeneous or not, and you said okay, this is not homogeneous, means non-homogeneous function. Similarly, you checked about the sine x upon y. This is also homogeneous function of degree 0. Now come to homogeneous differential equation. A differential equation of the form of dy upon dx equals to f of x comma y upon g of x comma y is called homogeneous differential equation if these two functions f of x comma y and g of x comma y are both homogeneous function of the same degree. ठीक है, ये क्या होने चाहिए? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए these two function are also homogeneous function
homogeneous function of same degree. It means if we take t outside from both functions and must cancel the powers, and at the end t power 0, this means k both 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 having same degrees. Okay. तो उसके बाद हमने यहाँ तक आ गए थे. Now the second thing is, we start from second thing, that is theorem. Homogeneous equation. Homogeneous equation.
तो ये है कि एक थ्योरम है, a homogeneous differential equation dy upon dx of the form if this is transformed into a separable equation, यानी कि जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं इससे पहले, सेपरेबल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेबल इक्वेशन, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन या थ्रू दिस सब्स्टिट्यूशन, दैट इज y इक्वल्स टू वी एक्स। वाई को आप रिप्लेस कर देंगे वी एक्स से। ओके, now we check these two differential equation are homogeneous or not. So dy upon dx, a लेंगे पहले, taking a, now putting, ये आपने लिख लिया फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये अल्फा भी लैम्डा भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो हेयर वी यूज x replaced by lambda x and y replaced by lambda y। ओके, सो फिर क्या किया, जहाँ जहाँ y था उसको हमने रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। x था, x को रिप्लेस कराएंगे लैम्डा x एंड y रिप्लेस बाय लैम्डा y। अगेन ये क्या हो जाएगा, इसको पहले इकट्ठा कर लेंगे, ये किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो वो फार्मूला लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि x की जगह पर लैम्डा एक्स एंड y की जगह पर लैम्डा y, ठीक है। नाउ टेकिंग फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, लैम्डा स्क्वायर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट्स ले लिया जी, ब्रैकेट्स, एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ डिग्री शुड बी, डिग्री यू लुक्स हेयर लुक सेम, नज़र यहाँ पर दिखती है, कैसे सेम दिखती है, तो क्या होगा, ये अब वो डेफिनेशन पूरी हो गई, ठीक है, कि द बोथ जो फंक्शन है एफ एंड जी क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन विद सेम डिग्री। तो ये देखें सेम डिग्री है, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर सेम डिग्री है। और जी आपकी आवाज़ बहुत शोर आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर करें। हेलो, सर वो गेम में लगे हुए हैं। तो लेमडा पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया। इसी तरह सिमिलरली वी हैव टू चेक अनदर फंक्शन, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अनदर फंक्शन को आपने यहाँ पे चेक किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहीं रहने देंगे, और इस y को आप जो है वहाँ भेज देंगे, ये प्लस वाई हो जाएगा, फिर ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जी डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये वाला x जो है वो वहाँ डिवाइड होने से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ये विदाउट x आ गई। नाउ पुट, यहाँ रिप्लेस x विद लेमडा x एंड y रिप्लेस बाय लेमडा y। तो आपने यहाँ देखा कि y को और x को, जहाँ जहाँ x और y है उसको लिया, और एट दी एंड यहाँ पे लेमडा लेमडा से कट जाएगा, और यहाँ जो लेमडा है ये लेमडा स्क्वायर पहले ब्रैकेट में आएगा, फिर अंडर रूट में आएगा, फिर बाहर आ जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लेमडा है विथ सेम डिग्री नहीं आया, ये वाला कैंसिल हो गया और ये बच गया। बचने का मतलब ये है कि एज इट इज़ ये वाला फंक्शन गेट नहीं हुआ, ठीक है, हासिल नहीं हुआ, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो दिस इक्वेशन इज़ नॉट होमोजीनियस, ठीक है, ये हमने चेक करना है, देख लिया इसका कि कैसे चेक होती है। ओके, नाउ सॉल्व द homogeneous linear differential equation you have given this differential equation। first you rearrange किस फॉर्म में करना होता है, आपने इस फॉर्म में करना होता है, ये वाली जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में आप रीअरेंज करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आपने इस फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया, कैसे भला, सबसे पहले आप इसको ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई को, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इस क्या होएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसको नीचे भेज देंगे और इसको भी नीचे भेजेंगे, मीन्स
एक्स वाले को डी एक्स को नीचे भेज देंगे और इस एक्स स्क्वायर को नीचे भेज देंगे। नाउ अब चाहें तो टेस्ट चेक कर लें, ये स्टेप नेसेसरी नहीं है। ये चेक आप अपने विजन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जहन से भी कर सकते हैं कि है कि नहीं। ये अच्छी बात है, अगर स्टेप दे दें, नहीं देने तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्स ये जहन में भी आप कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा वाई स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, ये भी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से टेकिंग कॉमन लैम्डा स्क्वायर बाहर, और यहाँ तो लैम्डा स्क्वायर बन ही रहा है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, होमोजेनियस डिग्री सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, अब चाहे तो चेक कर लें जैसे मैंने कहा है, नहीं तो डायरेक्ट को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आपको पता चल जाए कि द गिवन इक्वेशन आफ्टर द स्पेसिफिक फॉर्म इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, पहले आप यहाँ बोलेंगे ना, ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, पहले इसको उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि इस फॉर्म में ले आएंगे, फिर आप कहेंगे दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है ना, गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, homogeneous, this given the given equation is homogeneous। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं इस स्टेप पे, आपने आप क्या करना है, नाउ पुट, ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट लिख दें, ठीक है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू, यूजिंग थ्योरम, जो भी मैंने थ्योरम ऊपर बताया था। वाई वी यूज दिस थ्योरम, क्यों करते हैं हम दैट थ्योरम, बिकॉज वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर होमोजीनियस इक्वेशन इनटू द सेपरेबल फॉर्म, एंड दैट वी कैन इजीली हैंडल। ठीक है, जो कि हम इजीली हैंडल करते हैं, एंड इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड एंड गेट द सॉल्यूशन। तो आपने किया y इक्वल्स टू वी एक्स, नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी का फार्मूला, पहले v ऐसे ही आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, लिखते नहीं है 1 को, फिर प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, x सेम रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन में, जिसको जिसको हमने बताया था कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। कैसे पता चला, जब हम इसको इस फॉर्म में लेकर आए, हमने देखा कि ये होमोजीनियस है। अब जिस फॉर्म में लेकर आए थे ना, नाउ इन दिस फॉर्म क्या करेंगे, ये वाली सब्स्टिट्यूशन है, ये यहाँ पुट कर देंगे। इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे मैं ये पूरा लिख दूंगा, वी प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिख दिया जी। ठीक है, और जहाँ जहाँ y है, देखिए एक y ये है, एक y ये है, इन दोनों y की जगह पे क्या आ जाएगा, वी एक्स, तो ये आ गया वी एक्स स्क्वायर था, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ये आ गया वी एक्स। ठीक है जी, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, और नीचे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सही है, इक्वल्स टू, फिर पावर खोल देंगे, अलग अलग कर देंगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी, और एक्स एक्स के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन फिर एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा जी, ऊपर से आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकलेगा, न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, वी स्क्वायर प्लस वी, ये बच जाएगा आपके पास, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इजीली जो लेफ़्ट साइड पर एक और वी नज़र आ रहा है, उस वी को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। राइट साइड पे करेंगे तो जो प्लस वाला वी है वो माइनस वाले वी से कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड पे सिर्फ बचेगा क्या, वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बच गया, तो क्या आया, एक्स कौन किसके बराबर आ गया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर के बराबर आ गया।
अब आप क्या करेंगे, ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऑल द वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स शिफ्ट टू वर्ड डी एक्स और ऑल वेरिएबल वी शिफ्ट टू डी वी, ठीक है। तो अब क्या किया, इस वी स्क्वायर को अपॉन में भेज देंगे डी वी के पास, और यहाँ पे जो डी एक्स अपॉन में उसको ऊपर राइट साइड पे ऊपर ले जाएंगे, और एक्स को जो है वो राइट साइड पे नीचे लेके जाएंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और आप दोनों फिर क्या करेंगे, आप बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। सेपरेट करने के बाद टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल, ये आपने इंटीग्रल ले लिया दोनों तरफ से, पहले सेपरेट किया, वी स्क्वायर को नीचे भेज दिया डीवी के पास, देखें डीवी के पास आ गया, एक्स को राइट साइड पे लेके गए ऊपर की तरफ, और ये वाला एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये आर्बिट्ररी सी भी आएगा, को इसको आप कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा जी, अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/v² का इंटीग्रल क्या है जी, एनीवन नोस प्लीज टेल। -1/v। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाते हैं, हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ये जो भी आपने बताया है, -1/v आ गया लेफ्ट साइड पे, और आपको पता है 1/x होता है ln x के, ठीक है, सही है जी। यस सर। हम्म, और प्लस आ गया, प्लस आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ln c, कोई एतराज़ तो नहीं है, c को मैंने ln c लिख लिया। देखिए कांस्टेंट के अंदर कोई प्लस करें तो भी ln c, ओ सॉरी, कांस्टेंट के अंदर प्लस करें तो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट के अंदर कुछ में से कुछ माइनस करें तो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर माइनस का है तो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट नंबर से अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर कोई कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है अगेन कांस्टेंट, तो अगर सी ln c है, यानी कि अगर ln कांस्टेंट का है तो वो भी, उसका जवाब भी कांस्टेंट ही आएगा। तो लिहाजा आप जो अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट से अगर कोई ऑपरेट करवा रहे हैं तो एट दी एंड जो है वो कांस्टेंट ही जवाब आएगा, तो इसलिए मैं ln c की जगह पे c लिख सकता हूँ, और c ln c की जगह पे ln c लिख सकता हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है, कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कोई ऑपरेटर भी लगा दें तो भी वो कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकती है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये इसके स्टेप को मैं ऊपर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ln की। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप यहाँ पे भी ये छोड़ देते हैं ना, ये, तो बल्कि छोड़ने से पहले एक काम करें, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट ये है कि सबसे, क्योंकि आपने इस सवाल को वी में ले गए थे ना, तो वी से दोबारा आपने जब, जैसे ही आपने मिसाल के तौर पे आपने अपने काम के लिए किसी से उधार लिया, आपका काम निकला तो आप उसको आप उधार वापस कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका आपने कोई चीज़ खरीद लिया, आप उसका उधार दे रहे हैं, तो ये उधार देने के लिए आप क्या करेंगे, वी की वैल्यू रख देंगे, तो वी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, ठीक है। आपने क्या लिया था, y=vx लिया था, अब v की वैल्यू निकालनी, तो ये x नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो क्या हो जाएगा, y/x आ जाएगा, तो मैंने v की वैल्यू लिख ली, ठीक है, इक्वल्स टू, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स ऊपर चला x जाएगा, upon y। ठीक है, और वाई नीचे आ जाएगा। एक तो ये है कि आप इसको यहाँ तक कर लें। अच्छा, इसके ऊपर प्रॉपर्टी लग सकती है जब ln के दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हो, ठीक है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ln cx मिला के, सिंस वी नो दैट, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यों हम जानते हैं कि ln a ये प्रॉपर्टी है ln की, ln a प्लस ln b जो है वो बराबर होता है ln ab के, ln a b के, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ लिखा होता है ln x माइनस ln c, तो फिर वो किसके बराबर होता है, ln a, उसकी प्रॉपर्टी इस तरह होती है ln a माइनस ln b, वो फिर चेंज हो जाता है ln a अपॉन b में, अपॉन में चला जाता है। अच्छा, ये रिवर्सेबल भी होता है, अगर कहीं लिखा हुआ होगा, आपको ज़रूरत महसूस हो कहीं कि ln a भी लिखा हुआ हो, तो आप उसको दोबारा जो है वो आप उसको तोड़ सकते हैं। कैसे भी, ln a प्लस ln b के अंदर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, आप दोनों को कभी भी किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यूँ यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, ये आपका फाइनल जवाब है, ये ऊपर वाला भी फाइनल था, ये दोनों फाइनल है, ठीक है। चाहें तो आप ये लिख दें, ये भी सही है, चाहें तो आप ये लिख दें, और अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग बोथ साइड क्या करेंगे आप, टेकिंग बोथ साइड ई लेंगे, ई एक्सपोनेंशियल, तो जब ई लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इसकी पावर में, और जब यहाँ ln के साथ ई लेंगे तो ई जो है वो क्या हो जाता है, ln ई या ln ई या ई ln, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी कि दोनों मिलकर वन बनाते हैं। तो इसका मतलब है लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सी एक्स लिखें आप, ठीक है, सही। बिल्कुल, ये तो है। ये आपका फाइनल जवाब, ये आपका फाइनल जवाब। वो है ना, ये हम आवाज़ बंद करें भाई, आवाज़ बंद करें, क्यों एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं? हेलो, ध्यान में थोड़ा शायद इधर ना वरना और कुछ और मतलब एटीट्यूड वाला नंबर माइक बंद समझ कर। ना, मैं तो देखो ना, हम होते हैं तजर्बाकार, बिल्कुल बड़े हम, तो आप अगर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन है उससे भी हमें पता चलता है कि भाई आपके अंदर क्या चल रहा है। तो भाई, हेलो 75, सर 42 बोल रहा था। तो ये आपका फाइनल है। अच्छा, अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि जो फाइनल आंसर दिया हुआ आपने इस जैसा बनाना है, इस जैसा भी बनाना है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ तक, ये भी फाइनल है, यहाँ भी रोक सकते हैं, यहाँ भी रोक सकते हैं, लेकिन वर्किंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, गलत हुई तो नंबर कट जाएंगे। अगर नहीं करना आ रहा तो वहीं छोड़ दें ऊपर वाले स्टेप में, ठीक है। ये भी फाइनल आंसर है, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, और अगर आपको यही चाहिए तो इस चाहने के लिए भी हम ऐसा इसको भी आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। वो भला ऐसे कि उसने क्या करा है, एक्स यहीं रहने दिया, ठीक है, और सी को उसने भेज दिया है अपॉन में, ठीक है, और ये जो है माइनस एक्स वाई अपॉन ये लिखा है, और मैंने आपको अभी बताया था 1/c जो है वो एक नया कांस्टेंट है, उस नए कांस्टेंट को उसने नाम क्या दे दिया, ए, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप ये ले लो, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर, कोई भी लिख लें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आंसर था। यहाँ पर आंसर, ये भी आंसर है, लेकिन ये
सिंप्लीफाइड नहीं है क्योंकि हमें अभी इसका उधार वापसी करना था, क्योंकि एक्स और वाई के अंदर जवाब लेना था, इसलिए हमने वी की जगह पे वैल्यूज़ रख दी। तो ये भी एक आंसर है, चाहे तो यहाँ रोक दें, चाहे तो यहाँ रोक दें, चाहे तो यहाँ रोक दें, यहाँ रोक दें, यहाँ रोक दें, ये सारे आंसर ठीक है। ठीक है, तो नो इशू। तो आपका ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। जो है एक बड़ी डिफरेंस ही है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आप ना होमोजीनियस बना सकते हैं। जैसे एक अजीब सी इक्वेशन है और ये ऑलरेडी इस फॉर्म में आई हुई भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, नीचे वाला जी ऑफ एक्स कोमा वाई। सेम डिग्री होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल सेम डिग्री नहीं है। यहाँ से कॉमन नहीं निकल सकता लेमडा, ठीक है, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ फंस जाएगा। तो उसके लिए किया इन्होंने ये कि x को सब्स्टिट्यूट किया है x+3 और y को किया है y+2, ठीक है, y+2 किया है। जब ये आप वैल्यू ऊपर रखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आप कैपिटल x और कैपिटल y में शिफ्ट हो रहे हैं, स्मॉल एक्स वाई से कैपिटल एक्स वाई में जा रहे हैं। तो होगा क्या कि इनके डेरिवेटिव लेंगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी एक्स, डी वाई इक्वल्स टू डी कैपिटल वाई। तो ये 0 0 हो जाएंगे जैसे इसने यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूट देम इनटू 1। कह रहा है ये वैल्यूज़ और ये जो डीज हैं या वैल्यू जब इसमें 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। क्यों? y को यहाँ पर रखेंगे, y+2 को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा। इसी तरह x में रखेंगे x+3 और y+2, तो 3+2 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, xy। अब आप जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब ये होमोजीनियस है, ऊपर से एक लैम्डा निकल रहा है और इन दोनों में से एक कॉमन लैम्डा निकल रहा है, इट मीन्स कि ये होमोजीनियस है। फिर आप थ्योरम लगा देंगे। अच्छा, पहला थ्योरम लगाते थे स्मॉल के लिए, वी, अब हमने जो सारे वेरिएबल ना कैपिटल कर दिए तो कैपिटल के हिसाब से लगा दें, ठीक है। तो y इक्वल्स टू वी एक्स, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव में जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स टी वी अपॉन डी एक्स, जैसे पीछे लिया था, सही है। इसके बाद आपने जो ऊपर इक्वेशन दी गई है ये वाली, इस इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे डेरिवेटिव रख दें इसका जो नया वाला है, और y की जगह पे वी एक्स रख दें। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन में जब वो x कॉमन लेंगे, x से x कट जाएगा, v अपॉन 1+v बचेगा। फिर जो लेफ़्ट साइड पे v है उसको राइट साइड पे ले आएंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के नतीजे में क्या होगा, वी स्क्वायर जो है वो वी स्क्वायर बच जाएगा और वी वी कैंसिल हो जाएगा। तो जवाब में क्या आया, -v अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1+v, ठीक है। फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन थी, थ्योरम लगाया था, थ्योरम का ये काम होता है कि उसको उस होमोजीनियस इक्वेशन को सेपरेबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कन्वर्ट सेपरेबल में कर देता है, इसका मतलब तमाम v वाले डी के पास भेज दें, तमाम x टर्म्स जो हैं वो डी के पास भेज दें। तो जब भेजेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस सी आ गया इसके साथ, सही। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे जी, ठीक है। एक जगह 1 अपॉन यूँ कर लेंगे, ये आप खुद कीजिएगा ना कोशिश करके। ये क्या होगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, फिर एक और आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे जाएगा डी वी, फिर हो जाएगा माइनस, ये मैंने यहाँ पे 1/2 लगाया, बताता हूँ क्यों लगाया, और यहाँ पे जाएगा 2v अपॉन वी स्क्वायर। ये मैंने इजाफी लगा दिया 1/2 और मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 किया। वजह ये थी, हालांकि होना तो यूँ चाहिए था v अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना, v अपॉन वी स्क्वायर होना चाहिए था।
तो यहाँ पे क्या आ गया जी, यहाँ पे आ गया 2v। वैसे तो सॉरी यूँ करने की ज़रूरत भी नहीं, इससे भी आसान हो सकता है ये। वो ये हो सकता है कि एक मिनट में रबड़ लेके ना इसको मिटा के दोबारा अच्छे से कर दूँ। अच्छा जी, ये आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये v से v कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब आप ये जानते हैं कि 1/v का क्या होता है। अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस 1/v होता है। तो वो -1/v माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/v। फिर जवाब में क्या आएगी, 1/v, इसकी इंटीग्रेशन, और इसकी क्या आएगी, -1/v का क्या हो जाएगा dv के हिसाब से, वो हो जाएगा -ln v। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी ln x हो जाएगा, प्लस c। अच्छा, आप c को चाहें तो ज़रूरत नहीं है, बल्कि हो सकता है काम। अभी देखते हैं। ln c को आपने, और c को आपने ln c लिख लिया, ठीक है। अब v की जगह पे v की वैल्यू रख दें। v की वैल्यू क्या था जी, कैपिटल x अपॉन y अपॉन x था, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि x को ऊपर भेज देता हूँ y अपॉन x की जगह पे लिखने की जगह, और y को नीचे रखता हूँ। इसी तरह ln जो है वो v, ये v भी क्या हो जाएगा, y अपॉन x, ठीक है, इक्वल्स टू, सही है। तो ये और ये ऐसे ही रहा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है कैपिटल में सारा कुछ, ठीक है। लेकिन आपने कहाँ जाना है, आपने जिस तरह का सवाल था उसमें जवाब देना है, यानी कि स्मॉल में चाहिए आपको वैल्यू, ठीक है। तो ये जो कैपिटल में आ रही ना जवाब, अब आपको कैपिटल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, x-3। और कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा उधर जाके, y-2, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पुट करूँगा, सही है। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, स्मॉल x माइनस क्या था मैं भूल गया, हाँ -3 हो जाएगा, अपॉन y-2 हो जाएगा। और माइनस, यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ठीक है। माइनस बाहर ऐसे ही रहने दी, बल्कि ऐसा करते हैं,
अभी नहीं करते। ln, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूँ मैं, अभी मैंने बताया था ना ln a अपॉन बी किसके बराबर होता है, ln a माइनस ln b के। ठीक है, ln की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो ln a इस वगैरह y, और इसको प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो गया माइनस, सॉरी ये वाला नहीं है, कैपिटल Y है यहाँ पे। अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया, बल्कि कर देता हूँ चेंज, उसके बाद अप्लाई करूँगा प्रॉपर्टी। कैपिटल Y की जगह पे आ गया स्मॉल y माइनस 2, और ये आ गया माइनस 3 ब्रैकेट में। इसी तरह ये जो x है ये भी आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। सर कुछ सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है आगे करना है या नहीं करना है, यानी कि जो सवाल जवाब ऊपर दिया वो जैसे बनाना है नहीं बनाना। मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं, कि जिसका जैसे ही आपका काम निकला, यानी कि आपने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन का मतलब होता है काम निकला, आपका काम पूरा हुआ इंटीग्रेशन से, उसके बाद आपने जो उधार लिया था वो उसको उधार वापस करें। जब उधार वापस कर लिया तो उसका मतलब है कि आपका वो जवाब आ गया, यानी कि आपकी चीज़ मुकम्मल हो गई, यानी कि आप किसी अब आपका काम भी हो गया और कर्जा भी नहीं रहा आपके ऊपर। तो आपने क्या किया, इसको स्मॉल एक्स वाई के अंदर लेके आ गए, तो ये आपका जवाब है। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एल एन की प्रॉपर्टी लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वही कुछ बन जाएगा जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ट्राई करके देखिएगा खुद से। ये आपका इस वक्त का फाइनल जवाब है। अच्छा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 5-10 मिनट, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। सही है, तो 5-10 मिनट रुक जाएं। ठीक है, ओके सर।